قرارداد پاکستان کے 83 سال مکمل ہونے پر مزار اقبال پر گارڈز تبدیلی کی پروقار تقریب۔ پاک فضائیہ کے چاکو چوبند دستے نے اعزازی گارڈز کی ذمہ داریاں سنبھال لی۔ تقریب کے مہمان خصوصی ایئر وائس مارشل سید عمران ماجد نے پھولوں کی چادر چڑھائی۔ یوم پاکستان کی تقریبات کی مناسبت سے مزار اقبال پر گارڈز کی تبدیلی کی پروقار تقریب منعقد ہوئی۔ پاک فضائیہ کے چاکو چوبند دستے نے رینجرز کی جگہ اعزازی گارڈز کی ذمہ داریاں سنبھال لیں۔ تقریب کے مہمان خصوصی ایئر وائس مارشل سید عمران ماجد نے گارڈز تبدیلی کی پریڈ کا معائنہ کیا۔ مہمان خصوصی نے مزار اقبال پر حاضری بھی دی، فاتحہ خوانی کی اور پھولوں کی چادر چڑھائی۔ مہمانوں کی کتاب میں تاثرات بھی قلم بند کیے۔ اس موقع پر ملک و قوم کی ترقی و خوشحالی کے لیے خصوصی دعا بھی کی گئی، جبکہ تقریب میں مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ کیمرہ مین ملک جاوید کے ہمراہ فرحان یامین، سٹی 42 لاہور۔ اب خبر شامل کریں۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب سید محسن نقوی کی مزار اقبال آمد۔ خطیب بادشاہی مسجد مولانا عبدالخبیر آزاد نے استقبال کیا، جبکہ ایئر فورس کے چاکو چوبند دستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے مزار شریف پر پھولوں کی چادر چڑھائی۔ مولانا عبدالخبیر آزاد نے ملکی سلامتی اور استحکام کی خصوصی دعا کروائی۔ سیکرٹری اوقاف پنجاب ڈاکٹر طاہر رضا بخاری بھی موجود تھے، جبکہ خطیب داتا دربار مفتی محمد رمضان سیالوی، وزیر اوقاف بیرسٹر سید اظفر علی بھی موجود تھے۔ ڈیپٹی کمشنر رافیہ حیدر، سی سی پی او اور بلال صدیق کمیانہ بھی موجود تھے۔ آپ کو بتا رہے ہیں نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب سید محسن نقوی کی مزار اقبال آمد۔ خطیب بادشاہی مسجد مولانا عبدالخبیر آزاد نے استقبال کیا۔ جبکہ رمضان کے آتے ہی فروٹس کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگی۔ فروٹس کی قیمتیں سن کر شہری بلبلا اٹھے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ یہ رمضان کی آمد ہے یا مہنگائی کا جن ہم پر چھوڑا گیا ہے۔ ماہ رمضان المبارک کی آمد کے ساتھ ہی مہنگائی نے شہریوں کی چیخیں نکلوا دیں۔ پھلوں کی قیمتوں میں 1 نہیں 2 نہیں 3 گنا اضافہ ہو گیا ہے اور پھل مہنگے داموں مارکیٹس میں فروخت ہو رہے ہیں۔ پھلوں کی قیمتوں پر نظر ڈالی جائے تو اس وقت سٹرابری 300 روپے کلو، کیلا 350، خربوزہ 180، انگور 500، سیب 250، خشک کھجور 600، شرفیہ کھجور 1200، سیل کھجور 600 روپے میں فروخت ہو رہی ہے، جبکہ کینو 200 روپے اور امرود 200 روپے، لوکارٹ 100 روپے پاؤ میں فروخت ہو رہی ہے۔ شہریوں کا کہنا تھا گھر سے فروٹس لینے آئے ہیں لیکن قیمت سن کر خالی ہاتھ لوٹ جائیں گے۔ کل جو آپ کو خربوزہ 100 روپے مل رہا تھا، آج 200 روپے مل رہا ہے۔ سیب جو 250 تھا وہ 350 پہ چلا گیا، کیلا جو ہے وہ 350 400 جا رہا ہے۔ تو ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے، کوئی ریلیف نہیں مل رہا۔ نظر کچھ نہیں آ رہا کہ ہم کچھ لے کے جا پائیں گے، یہ ہے کہ تھوڑا بہت جو زیادہ تھا اب کم کر دیں گے۔ رمضان آتے ہی پھلوں کی ہوش ربا قیمتوں نے شہریوں کی چیخیں نکلوا دی ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ حکومت بڑھتی ہوئی مہنگائی پر کنٹرول کرے۔ کیمرہ مین خالد محمود کے ساتھ مائدہ وحید، سٹی 42۔ ماہ رمضان کا آغاز ہو چکا۔ یوٹیلیٹی سٹورز پر عوام کا بے پناہ رش۔ شہر کے اکثر یوٹیلیٹی سٹورز پر بزرگ افراد اور خواتین سستے آٹے، گھی اور آئل کی تلاش میں پریشان ہیں۔ اشیاء ضروریہ نہ ملنے پر حکومتوں کو نااہل قرار دے دیا۔ ماہ رمضان کا آغاز ہوتے ہی شہری اشیاء خورنوش کی خریداری میں مگن ہو گئے۔ شہریوں کی بڑی تعداد سحر و افطار کے لیے اشیاء ضروریہ لینے یوٹیلیٹی سٹور پر بھی پہنچی۔ تاہم تاج پورہ، سکی موڑ سمیت دیگر علاقوں میں واقع یوٹیلیٹی سٹورز پر سستے آٹے، سبزیجات، گھی اور آئل کی قلت رہی۔ آٹا بھی سستا نہیں ہے اور گھی بھی نہیں ہے، ادھر سستا گھی بھی نہیں ہے، وہی مہنگے والا گھی دے رہے ہیں ادھر، تو نہ سستا گھی ہے اور نہ ہی آٹا تو بالکل ہے ہی نہیں نا۔ شہر کے اکثر یوٹیلیٹی سٹورز پر سستا گھی اور آئل نہ پہنچا۔ روزہ دار خواتین اور بزرگ افراد کو شدید مایوسی کا سامنا کرنا پڑا۔ انہوں نے سٹی 42 سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، رمضان آ گیا مگر ابھی بھی سستا گھی، آئل اور آٹا یوٹیلیٹی سٹورز پر نہیں پہنچ سکا۔ یہاں نہیں ہے، دونوں چیزیں نہیں ہیں، آٹا تو ہے ہی نہیں ہے نا، اور چینی بھی ہے وہ بھی سستی وہ بھی نہیں مل رہی ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے حکومتی عہدیدار کم از کم رمضان میں تو غربا اور سفید پوش طبقے کی ضروریات کو مد نظر رکھیں۔ یوٹیلیٹی سٹورز پر اشیاء ضروریہ کی ترسیل یقینی بنائی جائے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ شہزاد خان عبدالی، سٹی 42۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی مستحق شہریوں میں مفت آٹے کی تقسیم کے لیے متحرک ہیں، جبکہ شہر کے مختلف ٹرکنگ پوائنٹس پر مفت آٹے کی فراہمی کا عمل بتدریج بہتر ہے۔ ٹھوکر نیاز بیگ ماڈل بازار میں پوائنٹس کی صورتحال میں بہتری پر شہری مطمئن دکھائی دیے۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی کے نوٹس کے بعد شہریوں کی مفت آٹے کے حصول کے لیے شکایات دور کی جا رہی ہیں۔ ٹھوکر نیاز بیگ ماڈل بازار میں شہریوں کے لیے کیمپ قائم کرنے کے بعد کرسیاں بھی لگا دی گئی ہیں، تاہم پی آئی ٹی بی کی موبائل اپلیکیشن پر اسکیننگ کا عمل سست ہونے کے باعث انتظامیہ کو مشکلات کا سامنا رہا۔ یہاں کرسیاں بھی لگی ہوئی ہیں، ٹینٹ لگے ہوئے ہیں، دھوپ کا کوئی نہیں ہے، بڑے آرام سے لوگ اسکیننگ ہو رہی ہے۔ کل کچھ مشکل تھی لیکن آج کافی حالات بہتر ہیں۔
स्कैनिंग के बाद आटा जो है वो दिया जा रहा है। शहरियों का कहना है कि मुफ्त आटे की फ्राहमी का अमल काबिल तारीफ है। गुज़िश्ता रोज की निस्बत आज चंद मिनटों में स्कैनिंग का अमल मुकम्मल करने के बाद आटा दिया जा रहा है। बाज़ शहरियों ने शनाख्ती कार्ड स्कैन न होने का शिकवा किया। पीर तो खज्जल हो रहे हैं, कभी कह रहे 8 दिन बाद आए, कभी कह रहे 2 दिन बाद आए। मुड़ के ना क्या बेटे का शनाख्ती कार्ड लैके आई, वो भी लिया देना तो मैनू आटा नहीं मिल रहा। शहर में मुख्तलिफ ट्रकिंग पॉइंट्स पर मुफ्त आटे की बर वक्त फ्राहमी निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी के मुतहर्रिक होने का समर है। कैमरामैन वसीम निसार के साथ कलीम अख्तर, सिटी 42। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी अचानक एजर्टन रोड पर कायम फ्री आटा डिस्ट्रीब्यूशन पहुंच गए। आटा डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट पर इंचार्ज की अदम मौजूदगी पर इजहार बरहमी किया, जबकि वज़ीर आला पंजाब के दौरे के मौके पर आटा डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट पर मौजूद अमला भी मुस्तैदी से काम नहीं कर रहा था। मोहसिन नकवी की हिदायत पर कमिश्नर लाहौर ने इंचार्ज आटा पॉइंट तबस्सुम को ओहदे से हटा दिया और एसी शालीमार को फ्राई से गफलत बरतने पर वार्निंग जारी की गई। वज़ीर आला पंजाब ने एजर्टन रोड डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट पर आटा लेने के लिए आने वाली खवातीन से सूरत हाल के बारे में दरियाफ्त किया। आटे के थैले का वजन भी चेक करवाया। मोहसिन नकवी ने शनाख्ती कार्ड के जरिए आटे की हसूल के सिस्टम का मुशाहदा भी किया। वज़ीर आला ने वाज़ेह किया कि आवाम को मुफ्त आटे की फ्राहमी में गफलत बर्दाश्त नहीं है। CBD को मेन बुलेवार्ड की तामीर में बड़ा रिलीफ मिल गया। निगरान पंजाब हुकूमत ने कलमा अंडरपास रिमॉडलिंग मंसूबे की डेडलाइन में 7 रोज़ की तोसी कर दी, जबकि अंडरपास खोलने के बाद ट्रैफिक चलाने के साथ तामीराती काम में मुश्किलात का सामना था। ने अंडरपास का काम मुकम्मल कर लिया है। फिनिशिंग का काम जारी है, जबकि कलमा अंडरपास से CBD की जानिब जाने वाली बैरल की कंक्रीट बेड की तैयारी शुरू कर दी गई है। बैरल के अंदर कंक्रीट बेड करने के लिए स्टील स्ट्रक्चर बांधा जा रहा है। फिरदौस मार्केट की जानिब जाने वाले अंडरपास की खुदाई भी शुरू कर दी गई है। कलमा चौक अंडरपास और CBD की बैरल आइंदा 7 रोज में मुकम्मल की जाएगी। NLC की जेर निगरानी फिरदौस मार्केट की जानिब बैरल मजीद ताखीर का शिकार होगी। मंसूबे की कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक तकमील की तारीख 3 जून 2023 है। निगरान वज़ीर आला ने मंसूबा मुकम्मल करने की डेडलाइन 23 मार्च दी थी। अब निगरान हुकूमत की जानिब से तकमील की नई डेडलाइन 31 मार्च होगी। गवर्नर ऐवान वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट के अखराजात के लिए इजाफी बजट की डिमांड। गवर्नर सेक्रेटेरिएट के लिए 63 करोड़ 45 लाख के अखराजात का तखमीना लगाया गया, जबकि ऐवान वज़ीर आला के लिए नए माली साल में 86 करोड़ का तखमीना लगाया गया। सिफारशात महकमा खजाना को इरसाल कर दी गई। साल 2023-24 में गवर्नर और ऐवान वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट के अखराजात के लिए इजाफी बजट की डिमांड की गई है। गवर्नर और ऐवान वज़ीर आला के सेक्रेटेरिएट ने सिफारिशात महकमा खजाना को अरसाल कर दी हैं। ज़राए का कहना है कि गवर्नर और ऐवान वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट ने तमाम तर तजावीज़ महकमा खजाना को पेश कर दी हैं, जिसका हतमी फैसला काबीना करेगी। लेस्को ने 9 करोड़ रुपए के डिमांड नोटिस जमा करवाने वाले सार्फिन को 3 माह बाद कनेक्शन देने का फैसला कर लिया, जबकि शोबा मटीरियल मैनेजमेंट ने गुज़श्ता साल 31 दिसंबर तक जमा डिमांड नोटिस पर 15,000 सिंगल फेस मीटर्स जारी कर दिए हैं। जमा होने वाले डिमांड नोटिस पर कनेक्शन लगाने के लिए मीटर्स का इजरा कर दिया है। दस्तावेजात के मुताबिक लेस्को ने 15,945 सिंगल फेज मीटर्स जारी करने की मंजूरी दी है। सार्फिन ने गुज़िश्ता साल 1 माह के दौरान 9 करोड़ 20 लाख रुपए के डिमांड नोटिस जमा करवाए थे। डिमांड नोटिस जमा होने के बावजूद कनेक्शन नहीं दिया जा रहा था। तमाम सर्कल्स की सब डिविजन्स को मुतल्लिका फील्ड स्टोर से मीटर्स का स्टॉक उठाने की हिदायत जारी की गई हैं। कंपनी के नॉर्थर्न सर्कल को 2116, सेंट्रल सर्कल को 2348, ईस्टर्न सर्कल को 2274, जबकि साउथ सर्कल को 1771 सिंगल फेस मीटर्स जारी करने का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। कैदियों के लिए अशिया खुरनोश और बिजली का बजट खत्म। महकमा जेल ने रमज़ान में कैदियों के लिए खुराक और गर्मियों में बिजली की सप्लाई यकीनी बनाने के लिए 2.5 अरब मांग लिए, जबकि महंगाई की वजह से मुतल्लिका 100% बजट 8 माह में ही इस्तेमाल हो गया। दिन बढ़ती हुई महंगाई ने 53,000 से ज्यादा कैदियों के लिए 43 जेलों में अशिया खुरनोश और बिजली की सप्लाई मुश्किल बना दी है। महकमा जेल ने हुकूमत से खुराक के लिए मजीद 1.25 अरब, जबकि बिजली के बिल्स की बद में 1 अरब 30 करोड़ के फंड्स मांग लिए हैं। कैदियों को जेलों में रोजाना 3 वक्त खाना फराहम किया जाता है। बर वक्त फंड्स फराहम न किए गए तो खुराक और बिजली की सप्लाई मुतासिर होने का खदशा है। जबकि आसिफ अली रोड रहमानपुरा में अहले इलाका की तफरीह के लिए बनाया गया पार्क टूट फूट का शिकार हो गया। करोड़ों रुपए की लागत से बना आउटडोर फिटनेस सेंटर पार्क PHA इंतजामिया की अदम तवज्जोही के बायस वीरान हो गया। फिटनेस सेंटर पार्क PHA इंतजामिया की अदम तवज्जो के बायस उजड़ कर रह गया। पार्क में जगह जगह कचरे और मिट्टी के ढेर लगे, जबकि PHA का अमला गायब है। इंतजामिया की अदम तवज्जो के बायस लोगों ने पार्क में जानवर बांधना शुरू कर दिए। पार्क में ट्यूबवेल लगाने का वासा इंतजामिया का मंसूबा भी अरसा दराज से इल्तवा का शिकार है। अहले इलाका ने मुतालबा किया है कि पार्क की जल्द अज जल्द सफाई की जाए और आला हुकाम इंतजामिया की गफलत का नोटिस लें।
पाकिस्तान वोटर्स फ्रंट की जानिब से बढ़ती महंगाई के खिलाफ लाहौर प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज, मुजाहरीन की हुकूमत और महंगाई के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। पाकिस्तान वोटर्स फ्रंट की जानिब से महंगाई के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे के शुरका ने हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। एहतजाज के शुरका का कहना था कि जो भी हुकूमत आती है बस उन्हें अपनी पड़ी होती है। ज़मान पार्क के बाहर गंदगी के ढेर लगे, गंदा पानी जमा होने से ताफुन फैलने लगा, डेंगू की अफजाइश का भी खतरा है। हमारे नुमाइंदे तौकीर अकरम की देखते हैं इस रिपोर्ट में। तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने एक बार फिर ज़मान पार्क में डेरे डाल लिए। इमरान खान की रिहाइश गाह के बाहर कैंप लगा रखे हैं। खाने पीने का एहतमाम भी सड़क पर ही किया जाता है, जो खाया वहीं फेंक दिया। ज़मान पार्क के बाहर गंदगी के ढेर लगे हैं। सफाई ना होने की वजह से ताफुन पैदा हो रहा है, डेंगू फैलने का भी खदशा है। शुरा के लिए जिन बर्तनों में खाना तैयार किया जाता है उनकी हालत इंतहाई अबतर है। फुटेज में देखा जा सकता है कैंप में आए लोगों के लिए खाना पकाने वाला शख्स नहर के गंदे पानी में खाने के बर्तन धो रहा है। ये ना सिर्फ हेपेटाइटिस की वजह बन सकता है बल्कि दीगर बीमारियों का भी जन्म देगा। सियासी तहरीकों में लीडर तो अपने आरामदेह बिस्तर पर होते हैं, मगर इनके चलने वाले किस हाल में हैं ये तो वो खुद जानते हैं या इनका खुदा जानता है। कैमरामैन मोहम्मद जमील के हमरा तौकीर अकरम, लाहौर। लाहौर हाई कोर्ट में इमरान खान के खिलाफ मुकदमात की तफसीलात के मुतालिक केस की समाअत कल होगी। अदालत ने नैब और एंटी करप्शन से मुकदमात की तफसील के मुतालिक रिपोर्ट तलब कर रखी है, जबकि जस्टिस तारिक सलीम शेख इमरान खान के खिलाफ मुकदमात की तफसील की फाहमी की दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। अदालत ने नैब और एंटी करप्शन को 24 मार्च तक इमरान खान के खिलाफ तादीबी कार्रवाई से रोक रखा है, जबकि अदालत ने पुलिस और FIA के पेश किए गए मुकदमात में चेयरमैन PTI के खिलाफ कार्रवाई से रोकने का हुक्म वापस ले लिया। IG पंजाब उस्मान अनवर की ज़ेर सदारत पुलिस लाइन्स में पुलिस का इजलास आम हुआ, रोज़ा भी इफ्तार किया गया। IG पंजाब ने कहा, मुझ में और मेरी कांस्टेबलरी में कोई फ़र्क नहीं। पुलिस लाइन्स किला गुजर सिंह में खिताब करते हुए IG पंजाब का कहना था कि सोशल और नेशनल मीडिया पर हमें और हमारे बच्चों को गालियां और धमकियां दी गई। हम पर अपने लोग मरवा के कत्लो गारत गिरी का बाजार गर्म करने की प्लानिंग का इल्ज़ाम भी लगाया गया। हम इन इल्ज़ामात और गालियों का जवाब किसी इल्ज़ाम या गाली से नहीं देंगे। सरबराह पंजाब पुलिस ने कहा, इलेक्शन की कॉल पर फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाएंगी। IG पंजाब ने CCPO लाहौर को ज़मान पार्क की हिफाजत के लिए बेहतरीन इंतजामात का भी हुक्म दिया। DIG ऑपरेशंस अफसाल अहमद कोसर को सियासी जमात के जलसे को फुल प्रूफ सिक्योरिटी फ्राहम करने की भी हिदायत की, जबकि इजलास में CCPO बिलाल सदी कमियाना, DIG ऑपरेशंस अफसाल अहमद कोसर, DIG सिक्योरिटी कामरान आदिल समेत लाहौर पुलिस के तमाम अफसरान ने शिरकत की। गवर्नर पंजाब अली रहमान ने यौम पाकिस्तान पर सदर मुमलिकत की जानिब से मुख्तलिफ शोबों में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाली 40 शख्सियात को एवार्ड से नवाजा गया, जबकि गवर्नर हाउस में होने वाली पुरवकार तकरीब में गवर्नर पंजाब ने मुख्तलिफ शोबों में गिरां कदर खिदमात सर अंजाम देने वाली शख्सियात को सदर पाकिस्तान की जानिब से 17 इम्तियाज़, सदारती एजाज़ बराए हुस्न कारकर्दगी और तमगा इम्तियाज़ से नवाजा। एवार्ड्स हासिल करने वालों में प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अली, तौकीर अहमद नासिर, रियाज शाहिद मरहूम, मोहम्मद शफीउल मारूफ, शाकिर शुजा आबादी, चौधरी शाफे हुसैन, बाबर आजम, अताउर रहमान मरहूम, अलामा मोहम्मद रजा साकिब मुस्तफ़ाई शामिल थे। अब्दुल रऊफ, डॉक्टर मोहम्मद अकील बाबरी, डॉक्टर मोहम्मद आरिफ हसन खान, डॉक्टर मोहम्मद अशरफ ताहिर, परवीन रिजवी, मोहम्मद हफीज़ ताहिर, गुलाम कादिर मरहूम, अल्ताफ़ हुसैन अल मारूफ, ताफू खान को एवार्ड दिया गया, जबकि नरगिस शाहीन, सैयद अफजाल अहमद मरहूम, शेर मियाँ दाद खान, मोहम्मद जावेद, मोहम्मद कमर सुल्तान, फरहत अब्बास शाह, राना फजल हसन, अरशद नदीम, एहसन रमज़ान, मोहम्मद नूह दस्तगीर भट्ट शामिल थे। मोहम्मद सलीम अहमद, मोहम्मद अशरफ, प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद यूनुस, प्रोफेसर डॉक्टर सलमान अयाज, डॉक्टर नुसरतुल्ला चौधरी, जमील अहमद पाल, डॉक्टर वहीद अहमद, नीलम अहमद बशीर, डॉक्टर शेख मोहम्मद इकबाल को एवार्ड से नवाजा गया, जबकि शफीक अहमद चिश्ती, ज़ियाउर रहमान फारूकी मरहूम, हसन जावेद और शहजाद असगर अली भी शामिल थे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की ज़ेर सदारत पार्टी का इजलास हुआ। इलेक्शन में तोसी और जलसे के निकात के मुतालिक तबादला ख्याल किया गया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास ज़मान पार्क में हुआ। इजलास में वाइस चेयरमैन PTI शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, फवाद चौधरी शरीक हुए। इस मौके पर पार्टी चेयरमैन इमरान खान को 26 मार्च को PTI के जलसे की तैयारियों के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। इजलास में मुस्तरद जमशेद चीमा, उमर सरफराज चीमा, शफकत महमूद समेत दीगर सीनियर क़यादत ने भी शिरकत की।
गंज बाजार में राशन तकसीम करने की तकरीब। सादिया तैमूर ने माह सयाम के आगाज़ पर मुस्तहिक अफराद में राशन तकसीम किया। मुस्लिम लीग नून सदर शोबा ख़वातीन लाहौर सादिया तैमूर की जानिब से गंज बाजार में राशन तकसीम करने की तकरीब का इनेकाद किया गया। सादिया तैमूर ने माह सयाम के आगाज़ पर मुस्तहिक अफराद में राशन तकसीम किया। सादिया तैमूर का कहना था कि इबादत की कबूलियत के लिए गुरबा और मसाकीन मुस्तहिक अफराद को भी याद रखें। मुस्लिम लीग नून शोबा ख़वातीन पूरे रमज़ान तमाम ओहदेदारों के ताउन से इस सिलसिले को जारी रखेगी। शामनगर में साबिक चेयरमैन इरसलान हफीज़ की जानिब से लीगी रहनुमा मियां मरगूब के एजाज़ में तकरीब मुनक्किद हुई। इंतखाबी मुहिम के हवाले से मुशावरत की गई, जबकि शामनगर में साबिक यूसी चेयरमैन इंजीनियर इरसलान हफीज़ की जानिब से इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में मीटिंग का इनेकाद किया गया। PP 172 से मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मियां मरगूब ने खसूसी शिरकत की। इस मौके पर मियां तनवीर, जमशेद जट, खालिद अजीज़, शाहिद चौधरी, महर इशफाक, मलिक जुबैर, मुख्तार भोला, उवैस भट्टी समेत कारकुनान की बड़ी तादाद भी शरीक हुई। मियां मरगूब अहमद का कहना था कि ये हल्का मुस्लिम लीग नून का है, जब भी इलेक्शन हो यहाँ से मुस्लिम लीग नून ही कामयाब होगी। रहनुमा PTI चौधरी वसीम कादिर की जानिब से 25 मार्च के जलसे के हवाले से मीटिंग का इनेकाद किया गया। तहरीक इंसाफ के जलसे की तैयारियों पर गुफ्तगू की गई, जबकि मीटिंग का इनेकाद ज़ईम रज़ा काज़मी एडवोकेट के दफ्तर जैन मंदिर में किया गया। मीटिंग में मलिक सदीक अकबर, मुस्तफ़ा खान, जावेद भट्ट, बाबर अमान, सूफी हामिद, मोहम्मद परवेज़ ने शिरकत की। हाफिज़ खान अली, हाफिज़ जावेद, राना एजाज, गजनफर अली अब्बास, नासिर अहमद, उमर शहजाद, अमार चौधरी समेत दीगर भी शरीक थे। चौधरी वसीम कादिर का कहना था कि 25 मार्च के जलसे में इमरान खान ने कौम को अहम पैगाम देना है और ये तारीखी जलसा होगा। हमेशा की तरह आवाम जलसे में भरपूर शिरकत करेंगे। मॉडल टाउन में पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब की जानिब से बेगम नुसरत भुट्टो की सालगिरह के मौके पर तकरीब का इनेकाद किया गया। बेगम नुसरत भुट्टो की जमहूरी खिदमात पर खराज अकीदत पेश किया गया। तकरीब में पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब की क़यादत ने शिरकत की। सीनियर एडवाइज़र पीपल्स पार्टी बशीर रियाज ने खसूसी शिरकत की। उमर शरीफ बुखारी, अंजुम भट्ट, मुसरत सदीक शरीक, चौधरी मंशा प्रिंस, ताहिर गालिब, आकिब सरवर शरीक हुए। अरशाद खान, हमायूं चौधरी, फारूक बसीर भी मौजूद थे, जबकि नायब सदर पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब मियां अयूब ने दीगर मेहमानों के हमरा केक काटा। तकरीब के शुरा ने बेगम नुसरत भुट्टो को जमहूरी खिदमात पर खराज अकीदत पेश किया। तकरीब में मरहूम बेगम नुसरत भुट्टो के इसाले सबाब के लिए दुआ का भी एहतमाम किया गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ज़ेर एहतमाम मादरे जमहूरियत बेगम नुसरत की 94वीं सालगिरह के हवाले से तकरीब हुई। सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लाहौर चौधरी मोहम्मद असलम गिल ने खसूसी शिरकत की। तकरीब का इनेकाद मरकजी ऑफिस मॉडल टाउन 158C में किया गया। मादरे जमहूरियत बेगम नुसरत की 94वीं सालगिरह की मुनासबत से केक काटा गया। तकरीब में जनरल सेक्रेटरी वुमेन विंग लाहौर सोनिया खान, डिप्टी सेक्रेटरी उमर शरीफ बुखारी, चौधरी रियाज, सज्जाद नज़ीर, अंजुम भट्ट ने शिरकत की, जबकि सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन पीपल्स पार्टी फायजा मलिक, बुशरा मलिक, उमर अयास, यासिर यारा, राउ शुजात, सदाकत शेरवानी समेत दीगर शरीक हुए। अब खबर शामिल करें। अल खिदमत फाउंडेशन लाहौर के ज़ेर एहतमाम गुलबर्ग ऑफिस में 23 मार्च के हवाले से तकरीब मुनक्किद की गई। तकरीब में यतीम बच्चों के साथ योम पाकिस्तान का केक भी काटा गया। अल खिदमत फाउंडेशन लाहौर के ज़ेर एहतमाम गुलबर्ग ऑफिस में 23 मार्च के हवाले से तकरीब मुनक्किद की गई। तकरीब में जनरल सेक्रेटरी मोगेज़ शाहिद कुरैशी, चौधरी मोहम्मद सलीम और फाउंडेशन के रज़ाकारों ने शिरकत की। तकरीब में बेसहारा और यतीम बच्चों के साथ 23 मार्च का केक काटा गया। बच्चों ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी बुलंद किए। बच्चों को परिंदों की पैदावार के लिए घरेलू घोंसले भी दिए गए। मोगेज़ शाहिद कुरैशी के मुताबिक आज की तकरीब का मकसद अल खिदमत फाउंडेशन के यतीम बच्चों को खुशियों में शरीक करना था। स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब के ज़ेर एहतमाम योम पाकिस्तान के मौके पर फुटबॉल मैच का इनेकाद किया गया। सेक्रेटरी स्पोर्ट्स शाहिद जमान और DG स्पोर्ट्स मोहम्मद तारिक कुरैशी मैच के मेहमान खुसूसी थे। योम पाकिस्तान के मौके पर पंजाब स्टेडियम में पंजाब फुटबॉल अकेडमी और पाकलैंड अकेडमी के दरमियान फुटबॉल मैच खेला गया। पंजाब फुटबॉल अकेडमी ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद पाकलैंड फुटबॉल अकेडमी को 6 के मुकाबले में 7 गोल से शिकस्त दे दी, जबकि सेक्रेटरी स्पोर्ट्स शाहिद जमान और DG स्पोर्ट्स मोहम्मद तारिक कुरैशी ने खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। डायरेक्टर यूथ फेयर सैयद उमैर हसन, मैच के ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी गफ्फार गुज्जर समेत शायकीन फुटबॉल की बड़ी तादाद मैच देखने के लिए पंजाब स्टेडियम में मौजूद थी। सेक्रेटरी स्पोर्ट्स शाहिद जमान का कहना था कि योम पाकिस्तान तजदीद अहद का दिन है, करारदाद पाकिस्तान का हासिल क़याम पाकिस्तान है। DG स्पोर्ट्स तारिक कुरैशी का कहना था कि योम पाकिस्तान के मौके पर फुटबॉल मैच का इनेकाद खुश आइंद है।
रहमतों और बरकतों वाले महीने का आगाज़ उम्मत मुसलमान ने रमज़ानुल मुबारक की बरकतें समेटना शुरू कर दी। मस्जिदों में नमाजियों का रश, हर तरफ अल्लाह अल्लाह की सदाएं। हर साल शिद्दत से माह रमजान का इंतजार करते हैं। माह मुकद्दस के पहले अशरे को रहमत का अशरा करार दिया गया है। चेयरमैन मरकजी रोहित हलाल कमेटी मौलाना अब्दुल कबीर आजाद कहते हैं, माह मुकद्दस में ज्यादा से ज्यादा वक्त इबादत और रियाजत में गुजारना चाहिए। उलमा के मुताबिक रमजान मुबारक में गुनाहों की माफी के लिए खुसूसी दुआ मांगनी चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक के मुताबिक रमज़ान मुबारक का पहला अशरा रहमत का है, दूसरा मग़फ़िरत का है और तीसरा अशरा जहन्नुम की आग से आज़ादी का है। जब हम रहमत के अशरे की बात करते हैं, रब्बिग़फ़िर वरहम व अंता खैरुर राहिमीन, ये वो दुआ है जिसके बारे में कहा गया कि पहले अशरे में कसरत के साथ पढ़ी जाए। पहले अशरे में अल्लाह तबारक व तआला से उसकी रहमत का सवाल करना चाहिए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि माह रमज़ान का पहला अशरा जो है वो रहमतों का अशरा है। रहमत का अशरा इसलिए मुक़द्दम किया गया कि गुनाहगार इंसान जो खुदावंद मुताल से डर रहे हैं, पीछे भाग रहे हैं, हम तेरी नाफरमानी कर चुके हैं, खुदा ने रहमत का दरवाज़ा खोल के कहा कि जैसे भी हो आ जाओ। रमजान मुबारक में शहर की तमाम जामियात, मसाजिद और मदारिस में खुसूसी इबादत का एहतमाम किया जा रहा है। कैमरा टीम के हमरा शाह सिपरा सिटी 42। रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने में इफ्तारी का रवायती एहतमाम हमारे मुआशरे का एक अहम हिस्सा है। शहरी इफ्तार के लिए बाज़ारों में समोसे, पकोड़े और कचौरियाँ खरीदते नजर आते हैं। रमज़ानुल मुबारक के पहले रोजे को ही बाजारों में समोसे, पकोड़े, कचौरियाँ, रोल और दीगर अशिया की खरीदारी के लिए शहरियों ने बाजार का रुख कर लिया। दुकानदार कहते हैं रमजान में इन सब चीजों की फरोख्त में इजाफा हो जाता है। माह रमजान में माशाल्लाह काम हमारा ज्यादा होता है और जैसे जैसे टाइम होता है साथ साथ कस्टमर भी ज्यादा हो जाते हैं। रोजादारों का कहना है अफ्तार में समोसे, पकोड़े और कचौरियों के बगैर दस्तरख्वान अधूरे रहते हैं। रमजान मुबारक का पहला रोजा है, माशाल्लाह रमजान शुरू हो गया तो हम इनसे समोसे और कचौरियाँ लेके जाते हैं। बड़ा फेमस है इनका टेस्ट। रमजानुल मुबारक में जहां शहरी इबादतों के जरिए रहमतें समेटते हैं, वहीं मजे मजे के पकवानों से भी खूब लुत्फअंदोज होते हैं। फरीहा बतूल, सिटी 42। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।